तब सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। चवर छतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरां दे पावन दरबार के अंदर ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सतगुरु पातशाह ਦੇ पावन बचन जफरनामा साहिब ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ जी। पहले 50 ਜਿਹੜੇ शेयर ने 50 नंबर शेयर तक विचार हो चुकी है। इकंजो 51वां नंबर जो शेर है उस तो आपां ये विचार अगे लैके चलांगे। तो आओ कुछ शेर का पहला पाठ आपां करते हाँ, उस तो बाद फिर इहदी विचार करांगे। धन वाहिगुरु साहिब जीओ के फर्जस्त बरसर तुराई सुखन के कौले खुदा अष्ट कम असस्त मन। अगर हरजत खुदा शिता बासवद बजाने दिले कारवाजे सावद। शुमारा चुफरजस्त कारे कुनी बमूजब न विश्ता शुमारे कुनी। न विस्तार सी तो बेगुफ्तैं जुबां बयायद के कारी बहराहत रसां। हम मर्द बायद सवद सुखनवर नाशिक में दिगर दर्द हाने दिगर। के काजी मरा गुफ्ता बेरू नयम अगर रास्ती खुद बेयारी कदम। तोरा गर बयायद आ कौले कुरा बानिज देश माहा रसानम हमा। चित शरीफ दर कसब कांगड़ कोनन वजा पश मुलाकात ब्रह्म बाहम सवद। सो ये 58 नंबर तक आपां पाठ किया जी। 51 नंबर तो फर्ज अस्त बसर है बरसर तुराई सुखन। फर्ज का अर्थ इत्थे धर्म, क्योंकि धर्म का एक अर्थ फर्ज भी होंदा, अपने फर्जां नूं निभाउणा, ये भी एक धर्म होंदा। तो पातशाह कहते हैं कि फर्ज अस्त बरसर तुराई सुखन। ऐ औरंगजेब हुण तेरा ये धर्म बनता है, हुण तेरा ये फर्ज है, हुण तेरा ये धर्म है। तुराई सुखन तेरे सिर उत्ते, तुराई सुखन का क्या अर्थ है? तेरे सिर उत्ते, भाव के हुण गल तेरे उपर खड़ी हुई। आप कहना भी तेरे सिर ते है गलबात, हुण ये गलबात तेरे सिर ते खड़ी है। कि कौले खुदा अष्ट कशम अस्त मन, कि तू अपने कौल कुरान ते कसमां नूं निभावें जिहड़ियां तू कौल कीते ने मेरे नाल। कशम अस्त, कशम सतवी जिहड़ा है वो पाठ आउंदा है कई थावां ते, पर ये दो वक्खो वक्खरे अखर ने। कशम अस्त मन, जिहड़ा तू कहा सी तू अपने कौल करारां नूं निभावें, तू अपने फर्जां नूं पूरा करें। इस करके हुण तेरा ये फर्ज बनता है। कशम अस्त मन का अर्थ हुंदा है, ये संबोधन है, ये शब्द थोड़ा होर ध्यान नाल समझो कि कौले खुदा अस्त इन्ना वचन करके फिर कसम अस्त मन। कसम अस्तमन का अर्थ होंदा मैं कसम खांदा हाँ तू एक कौल कीता सी मेरे नाल।
ਕਸਮ ਅਸਤਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਝੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਜਾੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਬੈਠੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉਹ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਉਹ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ ਪੱਕਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੂਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਸੂਤ ਨੂੰ ਵੱਟਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਨਮਾਜ਼ 5 ਵਕਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖਾਂਦਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ 5 ਵਕਤ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਕਸਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਸ ਕੌਲ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਉਸ ਕੌਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਦ ਸ਼ਿਤਾਬਾ ਸਵਦ ਬਜ਼ਾਨੇ ਦਿਲੇ ਕਾਰਵਾਜੇ ਸਵਦ ਸੀਤਾ। ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ, ਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜੇਕਰ, ਅਗਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੂੰ
अपने वादे के मुताबिक मेरे सामने हुंदा। शितादा का अर्थ हुंदा खड़ाउणा, खड़े हो जाना। जे तू वादे के मुताबिक, क्योंकि वादा की किया गया सी औरंगजेब ने भी पातशाह तुसीं सब कुछ छड्ड के कांगड़ आ जाओ तो कांगड़ धरती ते मैं भी आ जाऊँगा, आपां उत्थे बैठ के गलबात करांगे। ये वादा किया सी औरंगजेब ने, उही वादा पातशाह कीते करवा रहे ने। अगर हजरत खुद सीता दा शब्द, जेकर तू वादे के अनुसार औरंगजेब मेरे सामने हुंदा। बजान दिले कार वाजे शब्द, बजान का मतलब तनो मनो, बजान का की अर्थ है तनो मनो, दिले कार दिल दियां गल्लां, वाजे शब्द स्पष्ट हो जांदियां। तू मैनू अपनियां सुनाउंदा ते मैं तेनू अपनियां सुनाउंदा। जे तू मेरे सामने बैठा हुंदा औरंगजेब, आपां आपो अपने दिल दियां गल्लां करदे, पता लग जांदा कौन झूठा है ते कौन सच्चा है। अगला बचन, शुमारा चू फरजस्त कारे कुनी। शुमारा तेरे लिए, शुमारा का की अर्थ है तेरे लिए, फर्ज अस्त धर्म है, यही फर्ज है। कारे कुनी तू कम करें, बमूजब नविश्ता शुमारे कुनी। बमूजब का की अर्थ है अनुसार, नविश्ता लिखत, बमूजब नविश्त का की अर्थ है अपनी लिखत के अनुसार, अपनी चिट्ठी के अनुसार। शुमारे कुनी गिनती करें हिसाब लावें। अर्थ की बनया औरंगजेब हुण भी तेरा यही धर्म बनता है, तेरा यही फर्ज है, तेनों यही करना चाहिए कि तू अपने लिखे अनुसार, अपनी तू चिट्ठी के अनुसार ही सारे काम करें, भाव कार्रवाई करें। जो तेरे जरनैलों ने, जो तेरे वड्डे वड्डे सिपाहियों ने वादे तोड़े ने, जो उन्होंने वादा किया सी वो तोड़े ने वादे, तू उन्होंने दे उत्ते अपने वचनों अनुसार कार्रवाई करें। क्योंकि तू लिख के दिता सी मैनू ये गल भी पातशाह तुहाडा रस्ता नहीं रोकया जाएगा, तुहाडे उत्ते हमला नहीं होवेगा। ना विस्तार सी तो बेगुफ्ता जुबान, बयायत के कारी बराहत रसा। नविश्ता हुंदा लिखता, रसीदो हुंदा मिलना जां मिलिया। बेगुफ्ता, गुफ्त कहंदे ने, बेगुफ्ता जुबान, जुबानो जुबानी, भाव के एक हुंदी ना गल भी मैं लिख के दे दित्ती, एक हुंदा जुबानो जुबानी गल, उन्होंने कहते ने बेगुफ्ता जबान, जुबानो जुबानी गल। कहन लगी औरंगजेब जबानो जबानी तेरे काजी ने मैनू एक कहा सी कि बैयायत के कारी बैराहत रसां, कि तैनू इस करके जेड़ा औरंगजेब तेरा काजी सी, तेरे तू लिख के दिता ते तेरे काजी ने जुबानो जबानी कहा, दोने गल्लां। औरंगजेब तू मैनू चिट्ठी च लिख के दिता सी ते जिहड़ा तेरा काजी छड्डण वास्ते चिट्ठी लैके आया सी काजी सैयद, उस काजी ने जबानो जबानी भी मैनू ये गल कही सी। इहदा भाव कि जदों आनंदपुर साहिब की धरती के उत्ते काजी जिहड़ा सैयद आउंदा है पातशाह दे कोले चिट्ठी लैके, जिथे वो सतगुरां नूं चिट्ठी दिंदा है, उत्थे जबानो जबानी सतगुरु पातशाह नूं औरंगजेब दे कहे बचन जुबान चों बोल के भी दसदा है, दोने गल्लां करदा, चिट्ठी भी फड़ाउंदा, चिट्ठी च की लिखिया होया पातशाह नूं जबानो जबानी भी कह दिंदा भी पातशाह औरंगजेब ने यह सुनेहा घल्लिया, उही पातशाह कीते करा रहे ने। औरंगजेब एक तां काजी ने मैनू तेरा कौले कुरान दिता सी, कसम दिती सी वो दिती, दूजा जबानो जबानी भी तेरे काजी ने बेगुफ्तै जुबां कहा सी कि बैयायत के कारी बरायत रसां, आराम नाल पूरा। हुण बराहत का क्या अर्थ हुंदा है? राहत दे नाल, आराम दे नाल, रसां पूरा करें। हुण तैनू चाहिए कि वो सारा काम तू सिरे चढ़ावें, सारा काम तू पूरा करें। हम मर्द बायद सबद सुखन वल, ना शिकमे देगर
दर्द हाने दिगर। आ शेर बहुत जिहड़ा है वो आम संगतां नूं भी चेते हुंदा है। हुण पातशाह ना औरंगजेब नूं करारा बचन जिहनूं आ वो कहंदे ने, कहंदे औरंगजेब हमू मर्द बायद, जिहड़ा मर्द होवे ना, जिहड़ा सचमुच मर्द होवे, उस मर्द नूं चाहीदा कि वो बचनां दा पूरा होवे, पक्का होवे बचनां दा। भाव कि मर्द उहनूं कहंदे ने जो अपने कहे बचनां दे उत्ते पूरा उतरे। तू काहदा मर्द है, इहदा अर्थ की बनिया, औरंगजेब तू काहदा मर्द है, ਜਿਹੜੇ बचन तू कीते उन्हां बचनां नूं भुल गया। इस करके मर्द वो हुंदा जिहड़ा बचनां दा बली होवे, पूरा होवे। एक ना गुरमुखो साखी आउंदी है, ज्ञानी तेजा सिंह ने जिक्र किया इहदा बड़ा। वो कहते ने एक बार ना एक कवि आया गुरु कलगीधर पातशाह के दरबार दे विच, ते कहन लगा सतगुरु पातशाह मैनू अपने बचन कहण दा, कविता सुनाउण दा समा चाहिए। हुण ये सतगुरां दा सुभाअ सी भी भाई हर एक बंदे नूं अपनी गल कहण दा समा देना चाहिए। इसे करके गुरु अर्जन साहब सतगुरु पातशाह के दरबार विच ब्राह्मण आउंदा है एक, वो कहंदा पातशाह गरुड़ पुराण की कथा करनी है। पातशाह कहंदे कर ला, और करवाती सी पातशाह ने, हो गई सी। अज तो बड़ा औखा है ना ये गल्लां करना, पर पातशाह कहंदे पंडित जी तुहाडा मन ना इंज ना रह जाए भी मैं सच्चा सी, ते इस करके पातशाह ने सच्ची गल मैनूं कहण नहीं दित्ती। पातशाह कहंदे काहदी करनी, कहंदे गरुड़ पुराण की करनी है। हुण गरुड़ पुराण की गुरुद्वारे नहीं हो सकती, पर पातशाह कहंदे कर ला, और उन्हें पूरी की। पूरी करन तो बाद फिर वो हुण सिखां नूं देखिया पातशाह ने किन्ना असर कबूलदे आ, और सिखां ने असर कबूले ही नहीं। तो इदां होंदा, चलो एक जिक्र फिर करांगे ये सारी कहानी का। वो ना जिहड़ा कवि सी वो पातशाह कहंदे तू कर ला अपनी कविता। उन्हें एक कविता गाई, मर्द बांका मूछ सो है गोरी ओरीए। इदां लिखिया उन्हें की बचन लिखिया कि जिहड़ा मर्द हुंदा है ना, मर्द बांका मूछ सो है, नैन सो है गोरी है। ये कविता गाई उन्हें। अर्थ की बनता सी इहदा कि जिहड़ा मर्द हुंदा है ना, मर्द सोहना लगदा मुच्छां दे नाल, ते नैन सो है गोरीए। जिहड़ी गोरी का अर्थ हुंदा औरत, कहंदे औरत हुंदी लगदी सोहणियां अखां दे नाल। ये उन्हें कविता गाई गुरु के दरबार विच। जदों ये गाई, पातशाह कहंदे कवि जी गल तुहाडी सही नहीं है, ये गल कच्ची है। तुसीं कहा असीं तुहानूं समझ दित्ता, पर तुहाडी गल कच्ची है। मर्द बांका मूछ सो है, नैन सो है गोरीए। पातशाह कहंदे झूठी है तां गल, मर्द मुच्छां करके सोहना नहीं हुंदा। कलगीधर पातशाह कहंदे ने औरत अखां करके केवल सोहनी नहीं हुंदी, ये तां केवल बाहर की सुंदरता है, शरीरक सुंदरता है। पर पातशाह कहंदे ने, कहंदे मर्द बांका सुखन सो है, सील सो है गोरी है। पातशाह कहंदे ऐ कहना चाहिए सी, मर्द बांका सुखन सो है, सील सो है गोरी है। जिहड़ा मर्द हुंदा वो बचना करके सोहना लगदा, जिहड़ा मर्द बचना दा पूरा होवे उही मर्द सोहना हुंदा। सील सो है गोरी है, जिहड़ी औरत कोले सील संजम होवे उही औरत सोहनी हुंदी है। तो पातशाह ने इस सिखां नूं पहलां भी समझाया सी ये बचन। इस करके पातशाह जदों असीं बाणी पढ़दे हां तो बाणी विच भी किन्ने थावां उत्ते ये बचन आउंदा है, बचन कर खिसक जाए सोई नर कच्चा। इसे तरह पातशाह कहंदे हमू मर्द बायद सबद सुखन वर। मर्द वो हुंदा औरंगजेब जिहड़ा अपने बचनां दा पूरा होवे। सुखन वर दा अर्थ हुंदा जुबान दा पक्का होवे। ना शिकमे दिगर दर्द हाने दिगर, ये ठीक नहीं। ना सिकमे दिगर कि ਉਹਦੇ वैसे सिकमे का अर्थ होंदा पेट, इत्थे होएगा दिल, अर्थ मुताबिक दिल। जिस दे दिल विच कुछ होर होवे, दर दहाने दिगर, ते ओदी दहाने हुंदा जुबान मूँह, ओदी जबान ते कुछ होर होवे। औरंगजेब वो मर्द नहीं हुंदा जिहदे दिल विच कुछ होर ते जुबान ते कुछ होर होवे।
अर्थ की बनया औरंगजेब तू मर्द नहीं है, तू डरपोक है, तू कहर है। तेरे दिल विच कुछ होर सी ते तेरी जुबान ते कुछ होर सी। तेरी जुबान दे उत्ते कुरान दी सौं सी ते तेरे दिल दे विच बहुत वड्डी एक चलाकी सी, एक बेईमानी सी। इस करके तू काहदा मर्द अखवा रहा है। तो इसका अर्थ ये बनता है। अगला बचन के काजी मारा गुफ्ता बेरू नयम अगर रास्ते खुद बेयारी कदम। कि काजी मरा जो तेरे काजी ने कहा सी, जो तेरे काजी ने कहा सी मैनू गुफ्ता बेरू नयम, मैं तो उस तो कदे बाहर नहीं रहा। औरंगजेब जो तेरे काजी ने कहा, तेरे काजी ने कहा सी पातशाह आनंदपुर छड्ड जाओ, असी तुहानू कुछ नहीं कहांगे, मैं छड्ड दिता आनंदपुर। जो तेरे काजी ने कहा कहन लगे वो मैं उस तो बाहर नहीं। गुफ्ता बेरू नयम मैं बाहर नहीं सा, अगर रास्ती खुद बेयारी कदम। इस करके हुण तेरा रास्ता, रास्ती हुंदा सच्चाई, हुण यही सही है, यही सच्चाई है कि हुण तू खुद बेयारी कदम। बेयारी कदम का अर्थ होंदा मित्रता वाला कदम। बेयारी यारी हुंदा ना शब्द, ये शब्द बनया यारी तो, बा यारी भाई का कहता है मित्रता दे नाल, यारी दे नाल। हुण तेरा फर्ज बनता है कि तू मैनू चिट्ठी लिखी सी एक मित्र दे वांग, तू मेरे नाल वादे कीते सी एक मित्र दे वांग, की तू मित्र दे वांग कदम चुके, की तेरा वर्तारा मित्र वर्गा सी? ये पुछदे नहीं पातशाह। इस करके हुण तेरा ये फर्ज बनता है कि हुण तू औरंगजेब सच्चाई तेरी यही है कि तू हुण मित्रता वाला कदम उठावें। तुरा गर्भ आयद आ कौले कुरा बा निज दे शुमारा रसाना महामा। हुण ध्यान दिओ, सतगुरु पातशाह कहंदे ने औरंगजेब जो तू तुरां दा अर्थ है तैनू, थोड़े अर्थ लिख लो ये। तुरां दा अर्थ है तैनू, गर दा अर्थ है अगर, जेकर, बैआयत दा अर्थ है चाहिदा है, आ कौले कुरान, कुरान सौं खादी कुरान। कौले का अर्थ है सौं, कुरान का अर्थ है कुरान, जिहड़ी तू कुरान की सौं खादी सी। अर्थ की बनया औरंगजेब जे तैनू कुरान की सौं खादी वो चिट्ठी चाहिदी है, जिहड़ी चिट्ठी के उत्ते कुरान की सौं खादी सी, तो की कहंदे ने, कहंदे बा निज दे शुमा, हाँ रसानम हमा। रसानम हम का की अर्थ है मैं भेज दिंदा हाँ, कि तेरे बनज दे शुमा तेरे कोल। अर्थ की बनया औरंगजेब जे तैनू वो चिट्ठी चाहिदी है जिहड़ी चिट्ठी दे उत्ते तू कुरान की सौं खादी सी, वो चिट्ठी अज भी मेरे कोल है, मैं तैनू भेज दिंदा हाँ। और आ मैं थोड़े दिन पहला ये सुन भी रहा किसी किसी गुरसिख के कोलों, जिहड़ी वो चिट्ठी है ना, वो चिट्ठी न्यूयॉर्क के किसी परिवार के कोले पई हुई है। वो अज भी वो चिट्ठी सांभी हुई है न्यूयॉर्क अमरीका के किसी कोई परिवार है, उस परिवार के कोले वो पई हुई है, क्योंकि दीने कांगड़ पातशाह के कोल सी। हुण एक तुसीं हुण ध्यान देखो, वो चिट्ठी कित्थे मिली पातशाह नूं? आनंदपुर साहब। आनंदपुर साहब सतगुरु पातशाह ने आनंदपुर साहब छड्डिया, सरसा के किनारे जंग हुई, फिर पातशाह कोटला निहंग खां पहुँचते हैं, चमकौर की जंग हुंदी है सारी, माछीवाड़े पहुँचते हैं। पातशाह अपना कलगी, अपना दस्तार, अपने कपड़े वो भी एक सिख नूं सजा के गढ़ी चों बाहर निकलते हैं। तो पातशाह कई दिनों का सफ़र तय करने तो बाद, कई दिनों तो बाद दीने कांगड़ पहुँचते हैं। हुण तुसीं देखो सतगुरु पातशाह कोलों सब कुछ छुट गया, पर इत्थे पातशाह कह रहे हैं चिट्ठी औरंगजेब अजे भी मेरे कोल है, वो चिट्ठी अजे भी मेरे कोल है। वो चिट्ठी नहीं पातशाह ने छड्डी। इतिहास कहता भी जदों वो चिट्ठी आई ना, तो भाई मोहकम सिंह
ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। तो पातशाह ने आनंदपुर साहब वो चिट्ठी भाई मोहकम सिंह नूं संभालने दी दित्ती सी, क्योंकि सबूत सी ना एक भी आ देखो औरंगजेब ने सौं खाधी सी, ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਸੀ, ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ औरंगजेब ਦੇ। ਉਹ चिट्ठी पातशाह ने भाई मोहकम सिंह नूं दित्ती। ਉਹ चिट्ठी चमकौर दी गढ़ी पहुंचण तक भाई मोहकम सिंह दे कोल सी। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਬਦਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕੌਲੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਚਿਤ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰ ਕਸਬਾ ਕਾਂਗੜ ਕੋ ਨੰਦ ਵਜਾ ਪਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਹਦ ਸਵਦ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਿਤ ਸ਼ਰੀਫ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਉਣਾ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦਰ ਕਸਬ ਕਾਂਗੜ ਕੋ ਨੰਦ, ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੀਨਾ ਤੇ ਕਾਂਗੜ ਦੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੋ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਕਾਂਗੜ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਂਗੜ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗੜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗੜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਰਥ ਕੀ, ਛਿਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਚਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਲਲਕਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦਰ ਕਸਬਾ ਕਾਂਗੜ ਕੋ ਨੰਦ ਵਜਾ ਪਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹਮਾ ਸਵਦ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ, ਵਜਾ ਪਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਮਟਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਦਰੀ ਰਾਹੀ ਖਤਰਾ ਤੁਰਸਤ ਹਮਾ ਕੌਮ ਬੈਰਾੜ ਹੁਕਮੇ ਮਰਾਸਤ। ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਦਰੀ,
ना ज़रा का अर्थ है जरा जिन्ना भी, थोड़ा जिन्ना भी, जरा मात्र, जरा थोड़ा जिन्ना भी, ना जरा दरी, दरी का की अर्थ है दरी राह, तैनू रस्ते थोड़ा जिहा भी खतरा नहीं है। जे तू हुण मेरे वाल आवे ना, तैनू एक जरा मात्र भी खतरा नहीं है। खतरा तुरस्त, तैनू रस्ते च कोई खतरा नहीं होवेगा, इसकी जिम्मेवारी मैं लैंदा हाँ। हमा कौम बैराड़े हुक्मे मरासत, क्योंकि इस इलाके की जिहड़ी बहादुर कौम है, बराड़ कौम, वो मेरे हुक्म दे विच है। भाव के तू आ इत्थे, तेरे इत्थे सारी जिम्मेवारी मैं लैंदा हाँ औरंगजेब, तेनू इत्थे रत्ता मात्र भी खतरा नहीं है। आ तू मेरे सामने बैठ। क्यों? इस इलाके की बराड़, क्योंकि जिहड़े बराड़ लोग ने ना वो मालवे च वसदे ने, तो वो सारे उस इलाके दे विच ने, मालवा सारा बराड़ा नाल भरिया होया। तो पातशाह कहंदे जिहड़ी बराड़ कौम है वो सारी मेरे हुक्म दे विच है, वो तैनू कुछ भी नहीं कहेगी। बयारा बयाता सुखन खुद जबानी को नेम, बरुए शुमा मेहरबानी को नेम। बयाता बयान तक जरूर आ, सुखन हुंदा गलबात, खुद जबानी कुनेम, कुनेम मतलब करिए, कुनेम का की अर्थ है करिए। आ औरंगजेब तू जरूर आ इत्थे मेरे सामने, आपां सामने बैठ के गलबात करिए। बरुए शुमा मेहरबानी को नेम, आ अज भी आपां जे तू चाहे ते अज भी मैं सब कुछ भुल के तेरे नाल प्यार नाल गलबात कर सकदा है। पातशाह के मन अंदर कोई क्रोध नहीं है। पातशाह ये गल समझते ने, की समझते ने कि औरंगजेब जे तू चाहे तो तू तेरे मन च होवेगा ये भुलेखा औरंगजेब भी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह मेरे नाल गलबात नहीं करनगे, गुरु मेरे उत्ते गुस्से च होवेगा, गुरु मेरे च क्रोध ते होवेगा। पर औरंगजेब मैं अज भी शांत हाँ, मैं अज भी ठंडा है, मेरे मन अंदर अज भी कोई नफरत नहीं है तेरे प्रति। तू अज भी हाँ, अज भी आपां बैठ के मित्र दे वांग गल्लां करांगे, क्योंकि पातशाह जानते ने औरंगजेब नहीं आउणा, जानते नहीं। क्यों? उहदे मन च कुछ होर सी, जुबान ते कुछ होर सी। पर पातशाह कह रहे ने कि तू बहाना ना बना, आ तैनू रस्ते च कोई खतरा नहीं है, जिम्मेवारी असी लैंदे हाँ, बैठ के आ, मैं तेरे नाल लड़ांगा नहीं, झगड़ांगा नहीं, कोई बदला नहीं लवांगा, तेरे नाल मित्रता वांग, मित्रता मित्रां दे वांग बैठ के तेरे नाल मैं गलबात करांगा। तो पातशाह ये बचन औरंगजेब नूं कह रहे हैं। सो 60 नंबर तक ये विचार हुई है जी। सतगुरु पातशाह कृपा करन, भुलां चुकां दी खिमा, फतेह बुलाओ आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।